ਹੈਲੋ एवरीवन ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ योर ऑन ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਾਵੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQs ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦਿਸ ਵਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 2022 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣੇ MCQs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQs ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਔਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਆਲਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਸ ਮੋਸਟਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਸ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ 7 ਚੈਪਟਰਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ 6 PM ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 7 PM ਹੈ। 7 PM ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MCQs ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 6 PM ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 7, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਨ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, W ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ N ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 0 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਥਰਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Z ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫੋਰਥ ਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ P/Q, ਜਿੱਥੇ Q ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਫਿਫਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Q ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Q ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਆਲ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ √2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, -1 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਲਾਈਕ x² + 1
इज इक्वल टू 0। जब इस स्टेटमेंट का सोल्यूशन पूछा गया तो सारे ने सोचा कि हुण आपां की करिए, क्योंकि ये तो अपने कोल कितना बन गया एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर ये एक्स स्क्वायर -1 के इक्वल हो गया तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मेरे को जिहड़ियां एक्स दियां वैल्यूज़ ने वो मेरे को कितनियां वैल्यूज़ होनियां चाहिए ने, कोई भी 2 पर्टिकुलर वैल्यूज़ होनियां चाहिए ने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हुण इहदे विच अगर आप देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और जिवें कि अपन पता है कि प्लस माइनस रूट -1, तो कोई भी अगर नैगेटिव नंबर जो है अंडर दे विच आ जाता है इट कैन बी आप इसनूं नॉट डिफाइंड बोल देंगे। ठीक है, तां करके उन्होंने की किया मैथमेटिशियंस ने, उन्होंने की किया -1 नूं एक नाम दे दिता जिसनूं वो की बोलते हैं आयोटा बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि इसनूं एक सिंबल के नाल रिप्रजेंट किया जाएगा और इसनूं जो सिंबल के नाल रिप्रजेंट किया जाएगा इस सिंबल नूं उन्होंने की नाम दे दिता आयोटा नाम दे दिता। ठीक है, तो हुण जेकर आप किते भी गल करते हैं कि -1 की वैल्यू मेरे को की है तो तुसी कहोगे इट इज़ आयोटा। ठीक है, सो प्रीवियस इक्वेशन का सोल्यूशन अपने को की निकल के आया, प्रीवियस इक्वेशन का सोल्यूशन मेरे को आ गया प्लस माइनस आयोटा। हुण अगर गल की जाए इदा दी अनदर इक्वेशन लै लो, हुण सब दे सोल्यूशन ईजीली फाइंड आउट होने शुरू हो गए कि अगर इदा दा कोई भी जो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन है वो मैंने मिल जाता है तो मेरे को की होएगा ईजीली उसका आंसर अवेलेबल होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाऊगा +-2 आयोटा हो जाऊगा। ठीक है, तो इतों की होया आयोटा की रिप्रजेंटेशन शुरू हुई, आयोटा शुरू होया। ठीक है, तो मतलब जो है रियल नंबर्स ने वो भी किसी के अंदर कंटेन करते हैं, वो किहदे अंदर कंटेन करते हैं, वो कंपलैक्स नंबर के अंदर कंटेन करते हैं। खैर इन्होंने चीज़ों आप समझते हैं कि कंपलैक्स नंबर के अंदर कंटेन किवें करते हैं। ठीक है जी, तो हुण अगर गल की जाए रैशनल हो गया है ना, इरैशनल हो गया, कंपलैक्स नंबर हो गया, ये सारिया चीज़ां आपने देखिया। हुण अपन पहली गल तो आयोटा समझ आ गया, क्योंकि जो आप कंपलैक्स नंबर पढ़ांगे फिर अपन रियल नंबर उसके अंदर कंटेन करते हैं, वैसे तो थोड़ा पता ही है बट स्टिल आप डिस्कस करांगे। हुण जो आप बिल्कुल स्टार्टिंग तो चल रहे हैं दैट इज़ पावर्स, तो हुण आप गल कर लैने हाँ पावर्स ऑफ आयोटा कि आयोटा दियां पावर्स का की मतलब है। हुण हो सकता है थोड़े कोल आयोटा आ जाए, ठीक है, थोड़े कोल आयोटा का स्क्वायर आ जाए, ठीक है, क्यूब आ जाए, पावर 4 आ जाए, पावर 5 आ जाए, 6 आ जाए, अप टू सोन कितनियां भी पावर्स आ सकदियां ने, क्यों रियल नंबर के भी तो पावर्स होंदियां ही ने। 2 की पावर थोड़ा 1000 दे दें, कुछ ना कुछ तो आप सॉल्व करते ही हैं, चाहे AP लगाइए GP लगाइए, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम है ना। तो वो सारिया चीज़ां आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो इन्होंने देनी ही। तो सिमिलरली जो है आयोटा की फॉर्म के भी रिप्रजेंटेशन आपको इस तरीके देखने को मिल सकती है। जिमें कि अपन पता है कि आयोटा की जो वैल्यू है दैट इज़ -1, तो अगर मैं स्क्वायर कर देवां इट मीनस रूट -1 का की हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, और इसका मतलब मेरे को वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है 1। तो जिथे भी आप कहांगे कि आयोटा द स्क्वायर है उत्थे अपने को वैल्यू की होएगी हमेशा -1 होएगी। आयोटा क्यूब, ठीक है, मतलब -1 का मैंने की करना है क्यूब करना है, तो मतलब मेरे को कितना आ गया जी -1 इंटू अंडर दे विच -1 सिंपल। ठीक है, तो मेरे को कितना बन गया माइनस आयोटा के इक्वल हो गया। तो जिते भी तुहानू आयोटा क्यूब नज़र आवे तुसीं उहदी वैल्यू नू की पुट कर सकते हो माइनस आयोटा पुट कर सकते हो। अगर आप गल करिए आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 का मतलब कितना हो गया -1 की पावर 4। क्लीयर जी चीज़ है। तो ये मेरे को किहदे इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो यह मेरे को हो गई वैल्यूज़। ठीक है, तो जिथे भी तुहानू आयोटा रिप्रजेंट, पहली गल तो आयोटा नू आप कदे भी रूट दे विच -1 नहीं लिखते, बल्कि जिथे तुहानू रूट दे विच -1 नज़र आ जाता है उसकी जगह पर तुसीं आयोटा नू रिप्रजेंट करते हो। ठीक है, तो जिथे तुहानू आयोटा नज़र आऊगा उत्थे तुसीं इस वैल्यू नू रिप्रजेंट नहीं करोगे, नहीं करते आप। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की अगर गल की जाए तो उसकी वैल्यू मेरे को -1 निकल के आई है। आयोटा क्यूब मेरे को कितना निकल के आया -1 है ना, माइनस आयोटा सॉरी, और आयोटा पावर 4 मेरे को कितनी है 1 है। हम तो माइंड से 110% क्वेश्चन होएगा कि ये सब कुछ तो ठीक है, अगर मेरे को आयोटा की पावर 100 आ गई तो कि मैं इन्ना ज़्यादा सॉल्व करके देखांगा, नहीं। क्यों, देखो हुण अगर आयोटा की पावर 5 आ गई तो इसनूं मैं की लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकती हूँ, और आयोटा की पावर 4 का मेरे को की है 1 है इंटू आयोटा विच इज़ आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके नाल तुसीं ईजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर गल करिए कोई हाईएस्ट पावर आ जाती है लाइक आयोटा पावर 100, तो इन दिस केस तुसीं कहोगे कि मेरे को इसनूं मैं पहले तो 4 का मल्टीपल देख ला। ठीक है, हुण मैनूं पता है कि जेकर मैं 25 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को 100 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू मेरे को कितनी होंदी है 1 होंदी है। 1 की पावर तुसीं जिन्नी मर्जी करी चलो उन्हें आपस के विच वापस किया जाना है 1 ही आ जाना है, कोई भी फर्क नहीं पैना।
ठीक है। तो मतलब तुसी किस तरीके नाल ब्रेक करना शुरू कर दोगे, तुसी आयोटा दी पावर्स नू रिप्रजेंट करना शुरू कर दोगे किस फॉर्म दे विच, आर आयोटा दी पावर 4 दे विच, ठीक है। तो इस इन जनरल तुसी यही कह सकते हो कि जो आयोटा दी पावर n है दैट इज इक्वल टू आयोटा दी पावर r, और जिथे r की होएगा, r इज रिमाइंडर when n is divided by r। कहते r जो है वो मेरे को रिमाइंडर है कदों, जो तुसी n नू r दे नाल डिवाइड करते हो तो उसकी पावर दे इक्वल आ जाऊगा। इन जनरल तुसी ये गल बोल सकते हो। अनदर एग्जांपल ले लो, लाइक आयोटा दी पावर 71 ले लो। मैंने की किया 71 नू 4 दे नाल डिवाइड किया, सॉरी इत्थे r नहीं 4 होएगा। मैंने की किया 71 नू 4 दे नाल डिवाइड किया तो मेरे को कितना आ गया जी, मेरे को आ गया 1, ठीक है। फिर आ गया इसे 31, मतलब कुल मिला के मेरे को रिमाइंडर जो है वो 3 आ जाएगा। अगर मेरे को रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो मैं इसनू की लिख सकती हूँ, आयोटा दी पावर 4 दी फॉर्म च कुछ लिखो ना लिखो, बट सीधा इसनू मैं आयोटा दी क्यूब दे नाल लिख सकती हूँ, क्योंकि दैट इज माई वैल्यू ऑफ आर। और यही रिजल्ट मैनू कहता है कि आयोटा पावर n इज इक्वल टू आयोटा पावर r, ठीक है। सो बस सिंपल, आयोटा क्यूब थानू पता कि इक्वल होंगे माइनस आयोटा दे इक्वल होंगे, ईजी, ठीक है जी। उम्मीद है क्लीयर होणगियां ये गल्लां कि तुसी आयोटा दी पावर्स नू किवें देख सकते हो, ठीक है। हुण इहदे नाल नाल कई बारी जो अपने कोल पावर्स ने वो पावर्स की हो सकदियां ने, नेगेटिव भी हो सकदियां ने। नेगेटिव पावर्स ऑफ आयोटा जरूरी थोड़ी है पॉजिटिव होण, हुण नेगेटिव भी हो सकदे ने। लाइक अगर आयोटा दी पावर मैनू -2 दे दी, ठीक है, तो तुसी इत्थे की करोगे, इत्थे तुसी इसनू 1 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अगर 1 आयोटा स्क्वायर लिख लिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होंगी है, 1 होंगी है, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। हुण जरूरी नहीं है कि इन्नियां सिंपल जी वैल्यूज आउणगियां, तुहाडे कोल आयोटा की पावर -97 भी तो आ सकता, ठीक है। इस केस दे विच तुसीं इसनूं की लिखोगे 1/97, इनू तुसीं बिल्कुल सेम वे दे नाल की करोगे, सॉल्व करोगे जिवें तुसीं पहलां सॉल्व कीता सी, ठीक है। कि मैंने की किया 97 नूं 4 दे नाल डिवाइड किया तो मेरे को जो आंसर आ गया, मेरे को आ गया 17, फिर 4 ते चला गया 16, 1 बच गया मेरे को रिमाइंडर। तो मतलब मेरे को की होगी, ये वैल्यू मेरे को जो है आयोटा की पावर 1 के इक्वल होगी, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। सो ये मेरे को कितना हो गया जी, 1 आयोटा के इक्वल हो गया, ठीक है। बट आपां तुसी कदे भी यह चीज़ अगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म नूं रिप्रजेंट करांगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म नूं पढ़ांगे, उदों आपां इस चीज़ नूं ज़्यादा डिटेल दे विच पढ़ांगे। आपां कदे भी डिनोमीनेटर दे विच कोशिश करते हैं कि मेरे को आयोटा ना बचे, ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ कोशिश करते हैं कि मेरे को डिनोमीनेटर के विच आयोटा ना होवे। तो इन दैट केस तुसी की करोगे, इसनूं हुण सॉल्व करन दे 2 मैथड ने, तुसी जिहड़ा मर्जी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एक तो तुसी 1 नूं लिख लो आयोटा पावर 4 डिवाइड बाय आयोटा, सॉल्व करके आ गया आयोटा क्यूब, ठीक है। दूसरा जो यह है, इसनूं रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज ऊपर भी आयोटा नाल मल्टीप्लाई, नीचे भी आयोटा नाल मल्टीप्लाई। याद है ना, रैशनलाइज आप बचपन तो करते आ रहे हैं। सो ये मेरे को कितना बन जाएगा, ये मेरे को बन जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे को कितनी होंगी है, -1 होंगी है। तो इसनूं सॉल्व करके कितना आ जाएगा, -1 इंटू आयोटा, मतलब माइनस आयोटा की वैल्यू मेरे को आ गई। हुण तुसीं इत्थे भी देखो, ये भी मेरे को माइनस आयोटा दे ही इक्वल है, ठीक है। तो क्लीयर जी गल है, तुसीं इसनूं किसमें भी सॉल्व कर सकते हो। अगर नेगेटिव पावर्स आ जाए तो भी एड्डी कोई ज़्यादा कॉम्पलैक्स जी चीज़ नहीं होंगी, बड़ी आराम नाल उसनूं सॉल्व किया जा सकता है। तो इन जनरल तुसीं की कह सकते हो कि जो आयोटा पावर -n है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आयोटा पावर -r। कदों r इज वैल्यू, सॉरी r इज रिमाइंडर, r मेरे को की होएगा, रिमाइंडर होएगा when n is divided by 4, सिंपल, ठीक है। तो इत्थे सेम होएगा, बस की हो जाऊगा नेगेटिव दे विच हो जाऊगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हुण एक होर रिजल्ट है दैट इज शुड मतलब पता होना चाहिए आपां नूं, वी शुड नो कि आयोटा की पावर अगर 0 हो जाती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस चीज़ के कदे कन्फ्यूज ना होइयो, अगर आयोटा पावर 0 तुहानूं दित्ती हुई है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चलिए अगे, हाँ जी। तो ये सीगा अपने कोल सिंपल जिहियां गल्लां कि पावर्स ने जो आयोटा दियां किवें हुंदियां ने। हुण एक एग्जाम्पल कर लैंदे एक एग्जाम्पल करके थोड़ा सा ज़्यादा अपन पता लग जाऊगा, ठीक है। लाइक मैनू दित्ती हुई है आयोटा पावर 4n + 1 माइनस आयोटा पावर 4n - 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। कहते सोल्व दिस वैल्यू एंड फाइंड द आंसर, कि थोड़े को जो आंसर है इट विल बी 1 आयोटा
-1 और माइनस आयोटा। ठीक है, सो फर्स्टली प्लीज पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। पॉज करके सॉल्व करो, आंसर देखो, उस तो बाद मिलाओ कि भी थोड़ा जो आंसर है वो आंसर नाल मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, बी ऑनेस्ट ऑल्सो। ठीक है, चलो तो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कि आयोटा की पावर 4n+1 ਨੂੰ मैं किवें को सॉल्व कर सकती हाँ। तो जिवें कि मैनूं पता है पावर्स दे एडिशन है तो मैं इसनूं इस फॉर्म दे विच लिख सकती हाँ। ठीक है जी, सिमिलरली मैं इन्हों किमें लिख सकती हाँ, इसनूं लाइक कुछ 1/आयोटा लिख लैनी हाँ। ठीक है, उम्मीद है ये कोई भी डाउट नहीं होगा। और डिवाइड दे विच मेरे को कितना है 2 है। ये चीज़ ये स्टैप मैंने इत्थे तुहानूं करके दिखाया, बट एग्जाम दे विच तुसीं ये नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इत्थे तुहानूं इन्ना कुछ लिखण की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुहानूं पता है दिस वैल्यू इज़ 1 एंड दिस वैल्यू इज़ 1, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो 1 1 हो जानी है। तो सिंपल तुहाडे कोल कितना आ गया जी? तुहाडे कोल आ गया आयोटा -1/आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, हुण अगर मैं चाहां तो इसनूं की लिख सकती हाँ, 1 नूं लिख सकती हाँ मैं आयोटा पावर 4, इसनूं कर लिया सॉल्व। मेरे को कितना बच गया? मेरे को बच गया आयोटा माइनस आयोटा क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाय 2, और ये मेरे को किस दे इक्वल हुंदा है? ये मेरे को माइनस आयोटा दे इक्वल हुंदा है। ठीक है जी, और मेरे को कितना बच गया? 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, और आंसर मेरे को सॉल्व करके कितना आ गया? आयोटा आ गया। तो विच ऑप्शन इज राइट हियर? यू कैन सी बी ऑप्शन इज राइट हियर, मतलब आयोटा इज माई आंसर। ठीक है, हुण उत्थे तुसीं एग्जाम दे विच किहड़ियां चीज़ां नूं इग्नोर करोगे कि असीं किहड़े स्टैप नहीं करने। तुसीं इस स्टैप नूं लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, बट आ जो छोटे छोटे स्टैप ने मैं कली चीज़ एक्सप्लेन की है, आई डोंट थिंक सो कि इन्हां नूं तुसीं लिख के अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है जी, क्लीयर है। अगले टॉपिक वाले चलते हाँ, अगले टॉपिक नूं डिस्कस करते हाँ, दैट इज़ कि अगर तुहाडे कोल रियल नंबर और कॉम्पलैक्स नंबर आ जाते हैं, चलो उस तो पहले एक रिजल्ट भी है, उस रिजल्ट नूं देखते हैं कि उस रिजल्ट दे विच आपां की सीखते हैं। ठीक है, हुण रिजल्ट अपने कोल की है कि अगर बाय चांस मेरे को कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिव पावर्स आ जांदियां ने आयोटा दियां। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव? मतलब लगातार, लाइक आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इत्थे पावर 1 है, पावर 3 आ गई, उस तो बाद पावर 4 आ गई। ठीक है, तो इन्हां चारां दा ऐड ऑलवेज मेरे को की होएगा? 0 होएगा, ऑलवेज। ठीक है, इट इज़ नॉट ओनली फॉर दीज 4 नंबर्स, ये इस तो इलावा भी बहुत सारे नंबर्स लिए एप्लीकेबल है। अगर मैं इत्थे 97 ले ला, 98 ले ला, 99 हो जाएगा, उस तो अगे मेरे को 100 हो जाएगा, तो ये सारिया चीज़ां भी मेरे को की होणगियां इक्वल टू 0 होणगियां, क्योंकि दीज आर द 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, हुण जरूरी नहीं है कि पावर्स पॉजिटिव ही होण, दिस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, अगर यही पावर्स मेरे को की ने नेगेटिव ने और कॉन्जिक्यूटिव ने, देन दिस कैन बी ऑल्सो 0, ये भी मेरे को की होएगा? 0 ही होएगा। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो 0। सो इत्थे मैं इन जनरल की कहना चाहती हाँ, इन जनरल अगर सम ऑफ, तुसीं लिख सकते हो सम of 4 consecutive powers of iota। ठीक है, और इसनूं तुसीं रिप्रेजेंट किवें कर सकते हो? इसनूं तुसीं रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक आयोटा पावर n, आयोटा पावर n+1, आयोटा पावर n+2 और आयोटा पावर n+3। देन इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड इंटीजर हो सकता है मीनस वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। उम्मीद है ये कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर होगा तो कमेंट सैक्शन के अपने डाउट्स ने जो हो पूछ सकते हो। ठीक है, अगर गल की जाए नैक्सट कोई भी एक एग्जाम्पल लै लो इस तरीके के क्वेश्चन की। लैट मैनू की दिता होया है, एन की वैल्यू दी हुई है 10 तो लैके 20। ठीक है, और मैनू दिता होया आयोटा की पावर n, तो कहते दसो जी इसकी वैल्यू मेरे को की होएगी। देन यू विल सॉल्व इट। ठीक है, थोनू पता है पहली गल तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगियां, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स ने जो हो फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स ने जो फाइंड आउट करने के लिए अपने को बचपन तो एक मैथड है, दैट इज़ a+b-1। ठीक है, बाकी अगर आप इन जनरल की गल करिए तो आपको नज़र आ ही रहा है कि इतने कितनी टर्म्स होंगियां, इतने कुछ 11 टर्म्स होंगियां। ठीक है जी, 11 टर्म्स होंगियां। हुण तुसीं आप ही सोचो जो 11 टर्म्स ने वो मेरे को कॉन्जिक्यूटिव होंगियां। एक तो मेरे को n की पावर 10 आ जाएगी, 11 आ जाएगी, 12 आ जाएगी, 13, 14, 15, 16, 17 है ना, अप टू 20 मेरे को कॉन्जिक्यूटिव होंगियां, लगातार होंगियां। तो इन्हों मैं किवें ब्रेक कर सकती हाँ? मेरे को जो पहलियां 4 पावर्स ने वो होंगियां प्लस अगलियां 4 पावर्स होंगियां, और पिछे मेरे को कितनियां रह जाएगियां? 3 पावर्स रह जाएगियां। ठीक है,
हाँ जी, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਗਲੀਆਂ 4 ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ 3 ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 0 ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ 0 ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਟਰਮਸ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਆਇਓਟਾ ਪਾਵਰ 10, ਆਇਓਟਾ ਪਾਵਰ 11 ਔਰ ਆਇਓਟਾ ਪਾਵਰ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਦੇ ਬੋਥ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਆਨਸਰ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਇਓਟਾ ਪਾਵਰ 10 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਇਓਟਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬਚਦਾ ਹੈ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਇਓਟਾ ਕਿਊਬ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਆਇਓਟਾ 1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, -1 ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਪਲੱਸ 1 ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਆਇਓਟਾ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਟਿਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਔਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਿਟਵੀਨ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈंने ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ, x² + x + 1 = 0। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। x ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, -1/2 √3/2 ਆਇਓਟਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, -1/2 √3/2 ਆਇਓਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ 1 ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, नो डाउट। ठीक है, प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, लाइक इतने प्लस सीगा, इतने माइनस सीगा, और दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर। ठीक है जी, तो यह भी मेरे को की है, एक रियल नंबर है। बट रियल नंबर के नाल इतने मैंने की लगाया होया, इट इज़ आयोटा। ये मेरे को की है, आयोटा है। तो वैन अ रियल नंबर ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, लाइक 4 आयोटा, 5 आयोटा, √3/2 आयोटा, these all are imaginary numbers. So real number complex, real number और imaginary, complex नहीं, imaginary. So real number और imaginary number का combination ही अपने कोल की हुंदा है, complex number हुंदा है. So complex number which is equal to real number plus imaginary number. ठीक है, हाँ जी। तो हुण आपां पढ़दे हां कंपलैक्स नंबर की हुंदा है, जो आपां हुणी डिस्कस भी किया। कंपलैक्स नंबर, कंपलैक्स का मीनिंग होंगे मिक्सचर। मिक्सचर तुसी आप ही समझ लो कि मिक्स कर दिता गया है ना चीज़ों को। तो अपने को जो है इट इज़ अ कॉम्बीनेशन ऑफ रियल नंबर या फिर मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजनरी नंबर। ठीक है, हुण इमेजनरी नंबर इज़ नॉट ए नंबर विच इज़ इमेजनरी। इमेजनरी नंबर एक रियल नंबर है जिस दे नाल तुसी आयोटा दे नाल उसनू रिप्रजेंट कर रहे हो। ठीक है, लाइक मैं इसनू इन द स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे को की हुंदी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये मेरे को की हुंदी है कंपलैक्स नंबर दी, ये मेरे को हुंदी है x + आयोटा y, जिथे मेरे को x और y दोनों ही की हैं रियल नंबर दे विचों बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इसनू रिप्रजेंट आप किहदे नाल करते हैं, z दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब की आ गया, जिथे तुहानू z दे दिता या जिथे तुहानू मोस्टली आप की करते हैं इस फॉर्म दे विच रखने की कोशिश करते हैं अपने नंबर। ठीक है, दैट इज़ x + आयोटा y। उम्मीद है इत्थों तक क्लीयर होगा सारा कुछ। ठीक है, जिहदे विच तुसीं एक्स नू की लिख सकते हो, एक्स नू रियल पार्ट ऑफ z भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसनू रिप्रजेंट इदां करते हैं, दिस इज़ रियल
पार्ट ऑफ x, ठीक है जी, और y इज रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। सो दिस इज सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद है दोनों चीज़ां तुहानूं क्लीयर होणगियां प्रॉपरली। स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ वेरी ईजी थिंग, ठीक है। हुण आपां गल करते हाँ अगे थोड़ा जा एक टेबल के थ्रू इसनूं प्रॉपरली समझण की कोशिश करते हाँ कि वट इज़ कॉम्पलैक्स नंबर, कि जिहड़ियां दोनों ही चीज़ां ने ओह इसनूं किस तरीके नाल रिप्रजेंट करदियां ने। लेट देयर इज़ अ कॉम्पलैक्स नंबर विच इज़ x प्लस आयोटा y, सॉरी गलत लिख दिता मैं, x इज इक्वल टू आयोटा y, हाँ जी। There is a complex number which is x is equal to iota y. This number is a complex number. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਦੋ ਚਾਂਸਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ। ਫਰਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। these are the two things which we should read ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ z ਕੁਛ x टाइप ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ठीक है। तो x ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। इमेजनरी पार्ट मेरे को की हो गया, 0 हो गया। अगर मेरे को इमेजनरी पार्ट 0 हो गया दैन दिस नंबर इज नोन एज प्योरली रियल नंबर, क्योंकि इस इमेजनरी पार्ट की हो गया 0 हो गया। सो अगर तुहाडे कोल y की वैल्यू 0 है दैन दैट नंबर इज नोन एज प्योरली रियल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, -4, √2, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स आर प्योरली रियल नंबर्स। हुण ये कॉम्पलैक्स नंबर्स भी हैगे हैं और ये रियल नंबर्स भी हैगे हैं। दैट्स वाई आई सेड दैट कि जो रियल नंबर है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है। जिवें कि इंटीजर जो नैचुरल नंबर जो है वो इंटीजर का पार्ट होंदा है, रैशनल नंबर का पार्ट होंदा है। सिमिलरली रियल नंबर जो है दैट इज़ अ सबसेट और पार्ट ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर, ठीक है। सबसेट ज़्यादा सही लगेगा, सबसेट वर्ड यूज़ करांगे। अगर थोड़े कोल y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसनूं तुसीं बोलते हो नॉन रियल कॉम्पलैक्स नंबर। थोड़ा जा ऐदा लगता है कि आ की स्टेटमेंट है, नॉन रियल कॉम्पलैक्स नंबर हुंदा ही नहीं रियल, है ना, वो सारियां चीज़ां। बट इसनूं अगर तुसीं रिप्रजेंट करना चाहते हो, बोलना चाहते हो तो तुसीं इसनूं ऐदा ही प्रनाउंस करोगे कि अगर तुहाडे कोल y की वैल्यू 0 नहीं है दैट इज़ अ कॉम्पलैक्स नंबर विच इज़ नॉन रियल, ठीक है। हुण इहदे विच दो चीज़ां निकल के आंदियां ने। फर्स्ट वन कि जां तां हो सकता है x की वैल्यू 0 हो जाए, जां हो सकता है x की वैल्यू 0 ना हो। these two things are also we will discuss कि x की वैल्यू अगर 0 हो जाती है और x की वैल्यू अगर 0 नहीं होगी। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप देखते हैं कि मेरे को जो नंबर है वो किस फॉर्म का होएगा, z इज इक्वल टू आयोटा y की फॉर्म का होएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिर्फ केड़ा पार्ट रह गया, इमेजनरी पार्ट रह गया, तां करके तुसीं कहोगे दिस इज प्योरली इमेजनरी नंबर, this number is purely imaginary number। but if x is not equal to 0 then we will say कि यह मेरे को कोई नंबर होएगा जिहदे विच x भी 0 नहीं है और y भी 0 नहीं है। in that case this is a complex number, simple। ये वास्ते कुछ कहो ना कहो कोई फर्क नहीं पैंदा, तो अपन पता ही है कि सारे कॉम्पलैक्स नंबर ही आप डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल अपने को ये चीज़ां मन के आंदियां ने, ठीक है। तो z अगर दे विच अगर y 0 है दैट मीनस योर नंबर इज रियल, नहीं 0 तो नॉन रियल, ठीक है। अगे अब थानू पता ही है जो कि आप देखिया। क्लीयर है जी, ठीक है। अगर क्लीयर है तो दसो फिर आप चलते हाँ, ठीक है। ओके ये तो रिकॉर्ड क्लास है ना। चलो ये देखो अपने को की है। हुण अगर गल की जाए दो चीज़ों की, ऑपरेशंस आप डिस्कस कर लेने हाँ। ऑपरेशंस ऑन कॉम्पलैक्स नंबर। हुण ऑपरेशंस केड़े ने जो कॉम्पलैक्स नंबर के उपर लगाए जाते हैं, ठीक है। कॉम्पलैक्स नंबर के जोड़े ऑपरेशंस ने उन्होंने देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ नोन एज एडिशन, कि तुसी दो कॉम्पलैक्स नंबर का एडिशन किवें करना है, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फर्स्ट थिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो येस वी विल डू, आप कर सकते हैं भी। आप जिवें लगा लो कि मैंने कोई भी एक नंबर दिता होया विच z इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 मैंने कोई भी दिता होया विच इज़ x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। दिस टू आर नंबर्स और इन्हों मैंने की करना है, ऐड करना है। तो कुछ नहीं करना, मैंने की करना है z1 प्लस z2 फाइंड करने के लिए रियल पार्ट्स नू ऐड कर देना है। रियल पार्ट ऑफ z1 तो z2 का प्लस इमेजनरी पार्ट दे विच इमेजनरी पार्ट नू ऐड कर दो, थोड़ा आंसर आ जाएगा। मीनस x1 प्लस x2
प्लस आयोटा y1 प्लस y2 ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਿੰਪਲ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਇਮੇਜਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੰਪਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is subtraction ਹੁਣ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कि मोस्टली आप देखते हैं कि एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों ही पॉसिबल हैगियां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कि आप डिस्कस कर रहे हैं ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬਟ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ डिफाइंड ठीक है इन ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 + 3 ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 + 2 ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਚੋਂ ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਮੇਜਨਰੀ ਚੋਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अगर तुहानू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच थिंग इज़ नॉट मतलब डिफाइंड या विच अलजबरा जो कोई भी चीज़ जो है दो कंपलैक्स नंबर की डिफाइंड नहीं हैगी तो तुसी कहोगे सबट्रैक्शन नहीं हैगी हुण देखो जो तुसी एडिशन करते हो वो एडिशन किवें करते हो Z1 दे विच जो तुसी Z2 नू माइनस करते हो रियलिटी यही है कि तुसी Z1 दे विच Z2 नू प्लस ही कर रहे हुंदे हो बस उस दे एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करके ठीक है मतलब कहने का की है उसनू माइनस के नाल मल्टीप्लाई करके तुसी कर इत्थे एडिशन ही रहे हो बट आपां नू लगदा है कि आपां माइनस कर रहे हैं सबट्रैक्शन कर रहे हैं बट सबट्रैक्शन आपां कर दिंदे हैं क्वेश्चन भी अपने हो जाते हैं और आपां क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग करांगे भी नो डाउट ठीक है बट अगर थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाता है कि तुहाडे कोल पुछया जाता है कि सबट्रैक्शन कंपलैक्स नंबर दे विच डिफाइंड है या नहीं दैन योर आंसर विल बी नो कि नहीं है सिंपल थिंग इज़ हेयर ठीक है उम्मीद है ये चीज़ क्लीयर हुई होगी बट ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि तुसीं सबट्रैक्ट करना बंद कर दोगे सबट्रैक्शन होएगी और उसनू इस फॉर्मेट के नाल आपां की करते हैं सॉल्व भी करते हैं ठीक है क्लीयर है और अगर तुसीं करना चाहो तो देखो किवें होएगी Z1 मेरे कोल कितना है लाइक x1 प्लस आयोटा y1 Z2 मेरे कोल कितना है x2 प्लस आयोटा y2 दैन Z1 माइनस Z2 मेरे कोल कितनी हुंदी है x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 इस फॉर्मेट के नाल तुसी की है सबट्रैक्ट कर सकते हो दोनों ठीक है अगे चलते हाँ थर्ड थिंग के उपर थर्ड थिंग इज़ जी कि हुणी आप डिस्कस की कि Z नू आप माइनस के नाल मल्टीप्लाई कर देने दैट इज़ नोन एज एडिटिव इनवर्स ठीक है कोई भी कंपलैक्स नंबर है Z जो तुसी उसनू माइनस के नाल की कर देने हो मल्टीप्लाई कर देने हो इट बिकम माइनस Z एंड दिस इज़ द एडिटिव इनवर्स ठीक है ये तो अपन प्रॉपरली पता ही है किस नूं आपां की बोलते हाँ एडिटिव इनवर्स बोलते हाँ किस दा जो भी अपना नंबर हुंदा है कॉम्पलैक्स नंबर हुंदा है ठीक है जी सो माइनस Z इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ Z ठीक है और आइडेंटिटी की हुंदी है हाँ जी आइडेंटिटी की हुंदी है आइडेंटिटी हुंदी है 0 नो डाउट ठीक है आइडेंटिटी की हुंदी है 0 चलो 0 + 0 आयोटा जिमें भी तुसीं लिखना चाहो लिख सकते हो ठीक है हुण अगे आ जाती है अपने को अगर एडिशन हो गया मल्टीप्लाई हो गई तो फोर्थ थिंग है ना एडिटिव इनवर्स हो गया हुण आपां मल्टीप्लाई नूं डिस्कस कर लिए कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई किवें करनी है तुसीं मल्टीप्लिकेशन Z1 is a complex number like x1 plus iota y1 Z2 is a complex number like x2 plus iota y2 इन्हां दोनों की करनी है मल्टीप्लाई तो कर दो सिंपल जिवें तुसीं मल्टीप्लाई कर दो मैं मल्टीप्लाई कर दो Z1 दी मल्टीप्लाई करनी है Z2 दे नाल तो कितना होएगा x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 ठीक है इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x1 x2 ठीक है जी इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा x1 y2 आयोटा प्लस आयोटा y1 x2 और प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2 ठीक है रियल इनू देखो ध्यान नाल चलो अगले स्टेप च कर लेने x1 x2 ठीक है ये चीज़ जो है आयोटा स्क्वायर ये मेरे को -1 बन जाएगा माइनस y1 y2 हो गया ठीक है और इन्होंने दोनों के विचों मैं की करती हाँ आयोटा नू कॉमन कढ़ लैनी हाँ तो मेरे को रह जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2 आई विल प्रेफर कि इस मैथड नू याद ना करो हुण ये ना सोचो कि यह फॉर्मूला असीं याद करना नहीं करना तुसीं सीधी मल्टीप्लाई करनी है जिवें तुसीं दो ब्रैकेट्स नू ओपन करके उन्हां दी मल्टीप्लाई करदे हो बस नाल नाल आयोटा नू ध्यान च रखना है सिंपल होडी मल्टीप्लाई जो है वो हो जाएगी ठीक है
हाँ जी, नैक्सट फिफ्थ हो जाएगा डिवीजन के तुसी डिवीजन किमें करनी है, डिवाइड किमें करना है दो कंपलैक्स नंबर्स नूं। लाइक Z1 इज़ अ कंपलैक्स नंबर विच इज़ x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज़ अ कंपलैक्स नंबर विच इज़ x2 प्लस आयोटा y2। दोनों नूं डिवाइड करोगे तो सब तो पहले अपने माइंड दे विच यही गल आती है कि अच्छा जो तुसी इन्हां दोनों नूं डिवाइड करोगे तो यह कुछ इस फॉर्मेट दे विच होएगा। बट यही किहड़ा फॉर्मेट होया, हुण इहनूं असीं सॉल्व किवें करिए। तो सब तो पहला मैं तुहानूं याद करवाना चाहूँगी कि आपां ने कहा सी कि आपां हमेशा कोशिश करते हैं कि नीचे मेरे को डिनोमीनेटर दे विच आयोटा बचे ही ना। अगर मेरे को डिनोमीनेटर दे विच आयोटा सानूं चाहीदा ही नहीं तो उसनूं खत्म कर दो। खत्म किवें करोगे, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज किवें करदे हुंदे हो, डिनोमीनेटर दा साइन चेंज करो और मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो उपर तो देखो तुसी ईजीली मल्टीप्लाई कर ही लओगे। हुण ये चीज़ आप सॉल्व नहीं करांगे, इत्थे तुसी आराम नाल मल्टीप्लाई कर सकते हो जूगी। ठीक है, नीचे देखो थोड़े कोल कितना बन जाएगा, नीचे बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, कुछ ये चीज़ नज़र आ रही है मैंने। ठीक है, तो ये मेरे को कितना बन जाता होंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो a स्केयर मेरे को कितना हो जाएगा x2 का स्केयर माइनस b स्केयर मेरे को कितना हो जाएगा आयोटा y2 का स्केयर। इट मीनस मेरे को बन गया x2 का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर y2 का स्केयर। और आयोटा स्केयर की वैल्यू कितनी होंगी है, -1 होंगी है। इट मीनस मेरे को कितना बन गया, ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो इसमें सॉल्व कर लियो, सॉल्व करके थोड़े को आंसर आ जाऊगा, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, सो डिविजिबिलिटी करनी है, डिवाइड करनी है, वो किमें करोगे तुसी रैशनलाइज करके। ठीक है, इसनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे विच लिखण की कोशिश करो, मीनस डिनोमीनेटर दे विच आयोटा सानू चाहिदा ही नहीं। ठीक है जी, नैक्सट डिस्कस करते हैं। इस तो बाद आ जाता है अपने कोल कोई एक एग्जाम्पल ले लो है ना, एग्जाम्पल ना थोड़ा सा ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। एग्जाम्पल है लेट मेरे को 1 माइनस आयोटा पावर n और 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा पावर n। इसनों सॉल्व करो, सॉल्व करके मैंने आंसर दसो कितना होगा। वही काम करना है, वीडियो नूं इत्थे ही पॉज कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नूं पहले सॉल्व करो, फिर उसनों देखो, फिर मिलाओ। ठीक है, तो हुण इहदे विच देखो पहली गल तो इसनों मैं इदां ही रख लैनी 1 माइनस आयोटा दी पावर n। ठीक है, इसनों देखो मैं 1 नूं की लिख लवां, आयोटा पावर 4 लिख लवां। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, आयोटा क्यूब आ जाएगा। और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होंगी है, माइनस आयोटा। तो कुल मिला के मेरे को आ चीज़ बन गई। मतलब वो सारी कैलकुलेशन तुसी आराम नाल कर लियो। ठीक है, मैंने बोल के करती। तो हुण इत्थे की है मेरे को बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। तो दोनों की पावर इकट्ठी कर लैनी मैं, इन्हों लिख लैनी और दोनों की पावर इकट्ठी कर लैनी, जो मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरे को बन गया a स्केयर का मतलब 1 और b स्केयर मतलब आयोटा का स्केयर। ठीक है, और उसकी पावर कितनी है, n है। तो सोल्व करके कितना आ गया 1 1 प्लस और n मतलब 2 पावर n आ गया। देन इट विल बी माई आंसर कि 2 पावर n मेरे को की होएगा, आंसर होएगा। क्लीयर है जी, उम्मीद है ये चीज़ भी थोड़ी क्लीयर होगी कि इस एग्जाम्पल के थ्रू मतलब जो डिवाइड है उसनों तुसीं किवें सॉल्व करना है। हुण इत्थे मैंने की किया, मैंने सही लग रहा सी, मैंने सिंपल लग रहा सी। मैंने की किया मतलब आयोटा पावर 4 लिख लिया 1। ठीक है, अगर तुसीं चाहो तो इसनों रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, तो किवें भी हो जाऊगा। वो अपने अपने मैथड्स होंदे ने, अपनी अपनी स्पीड होंदी है। ठीक है, चलो तो ये सीगा। ठीक है जी, हाँ, तो एक कुछ रिजल्ट्स ने और रिजल्ट्स लिख लो, कम आएंगे तो साढ़े। तो रिजल्ट केड़े केड़े ने, लाइक x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, और x माइनस आयोटा वाई, जो कि आप हुणी पिछे 2 क्वेश्चन के सॉल्व भी करके आए हैं। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इन रियल नंबर है थोड़े को एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हो सकता है, बट क्योंकि इतने थोड़े को माइनस आयोटा भी नाल हैगा, तां करके इसनूं तुसीं इस दे फॉर्म दे विच लिखोगे। उम्मीद है ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप पिछले 2 क्वेश्चन के विच सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के विच जो आइडेंटिटी लगाई सी वो भी बिल्कुल यही लगाई सी। ठीक है, हो जाऊगा। और इस दे विच जो है तुहानूं पता होना चाहिए है, दैट इज़ सिंपल। ओके, हाँ जी, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्पलैक्स नंबर्स। ठीक है, 2 कॉम्पलैक्स नंबर्स की इक्वालिटी की होंदी है, जो किवें तुसीं उसनूं फाइंड आउट कर सकते हो, जो की मतलब है। ठीक है, तो देखो 2 कॉम्पलैक्स नंबर्स एक दूजे के इक्वल कदों होणगे। यही कॉम्पलैक्स नंबर है, ये मेरे को दूसरा कोई कॉम्पलैक्स नंबर है। कहते 2 कॉम्पलैक्स नंबर्स विल बी इक्वल इफ
real part of Z1 is equal to real part of Z2 and imaginary part of Z1 is equal to imaginary part of Z2। मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ x1 x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, y1 y2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਰੀਅਲ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਔਰ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ x ਐਂਡ y, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ Z1 Z2 ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆਰ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹੈਵ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਵ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ 2 + 3 ਆਇਓਟਾ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 + 6 ਆਇਓਟਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਮੇਜਨਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ A B ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A + ਆਇਓਟਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇਗਨੋਰ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸੋਲਵ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਏਗੀ ਔਰ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਆਏਗੀ। ਸਿੰਪਲ, ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਓਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਓਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਆਇਓਟਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਓਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਮੇਜਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ।
ठीक है कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੈਕਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੈਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕੰਜੂਗੇਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਨਾ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਹਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਚੈਨਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ठीक है तो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब कर दियो प्लीज़ क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बिना जिमें कि तुहानू पता है कोई गति नहीं है है ना मेरी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सबसक्राइब ऑल्सो एंड टैलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लियो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू नोट्स तुहानू मिलणगे ठीक है मिल ही जाते हैं PDFs मैं अपलोड कर देनी जड़ियाँ भी अवेलेबल होंगी सो उस तो बाद जी तो डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा अगर बाई चांस नहीं भी मिलता तो तुम किसी भी क्लास के डिस्क्रिप्शन जो कमेंट के चैक कर लियो लिंक अवेलेबल होगा ठीक है जी क्लियर है शुक्रिया तुहाडा सब का बहुत बहुत अगर क्लास पसंद आई दैन थैंक यू।